Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to English 9 and welcome to the Chase Academy. Dear learners, today's SLO is exactly the same like we did previously, जिसमें हमने dictionary के ऊपर बात की थी. Because this SLO, this students learning outcome, as you can see, first let us read it. This is not something new. हम अगर आप पिछले lectures जो follow करते आ रहे हैं, this SLO is actually quite recurring. ये बार बार आ रहा है. But every time we learn something new from this one. It says consult general and specialized reference materials. What are these reference materials? You already know. They are your dictionaries, your glossaries and your thesauruses. Available in the both print and the digital form to find lot of things. What are these things, Mohammed? Pronunciation, यानी लफ्ज को बोलना कैसे है. फर्ज करें आपने लफ्ज पहले कभी नहीं सुना. The first thing that you're going to do is go to the dictionary, find the pronunciation key and say that. क्योंकि वो pronunciation key आपको बताएगी कि लफ्ज को किस तरह अदा करना है. There are hundreds and thousands of words. It's hard to keep track of each and every word's pronunciation as new learners. So what do? We go back straight to the dictionary. Then, or pronunciation of a word or determine or clarify its meaning, its parts of speech or its etymology. So, since we are dealing with lot of words, so when we are dealing with lot of words, बहुत सारे words हैं जिनके spelling different हैं लेकिन सुनाई एक जैसा देते हैं. यानी साउंड वाइज अगर हम उन्हें देखें तो वो एक जैसे लगते हैं, समझ नहीं आती जब तक हम उन्हें क्लैरिफाई ना करें किसी कॉन्टेक्स्ट में या जुमले में कि मैंने एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट कहा है या एक्सेप्ट कहा है यूजुअली. तो कैसे पता चलेगा? विद यूजिंग इट प्रैक्टिकली इन अ सेंटेंस, हियरिंग इट इन अ कॉन्टेक्स्ट, तभी पता चलेगा. दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट है. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनके स्पेलिंग्स भी एक जैसे हैं, कहे भी एक जैसे जाते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, कॉनोटेशन डिफरेंट होती है. कुछ वर्ड्स हैं जिनकी साउंड एक जैसी है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है. कुछ हैं जिनके स्पेलिंग्स भी एक जैसे हैं और साउंड भी एक जैसी है. सो बहुत सारी कंफ्यूजन है. अब हमने क्या किया, हमने कुछ वर्ड्स जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनको पेयर अप कर दिया और हमने उनको सेंटेंस के जरिए क्लैरिफाई किया कि EFFECT इफेक्ट और AFFECT इफेक्ट, इसमें क्या फर्क है. क्या हमें ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हमें कौन सा इफेक्ट कहां पे यूज करना है? क्योंकि अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी. ऐसे ही है. डू यू अग्री? अली, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. Of course, we need to learn about these pair of words. We need to understand the differences, the nuances. So, this is how we are going to approach this SLO. Lastly, we talked about finding pronunciation, different meanings and etymology. Basically, हमारा जो last lecture था that was on etymology. क्या है origin, कैसे आप dictionary से etymology यानी लफ्ज की जो origin है, जो उसका background है, कैसे find out कर सकते हैं, लफ्ज की history को कैसे find out कर सकते हैं. This is the vertical linkage of grade 8. Simply, this is about using dictionary, but now in grade 9, one step ahead, we are going to learn about different words. What are homophones and pair of words? Anybody? क्या लगता है आपको? Aman. What are homophones? Yes, phone means relating to the sound. Homo means एक जैसे. ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं. और पेयर ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो जिनकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, जैसे अफेक्ट एंड इफेक्ट. सुनने में फर्क है, एक है अफेक्ट और दूसरा लफ्ज है इफेक्ट, दोनों में डिफरेंस है. तो हमने पेयर अप करके उनके यूजेज को सीखना है विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस. क्लियर है? मुबीहा एंड अस्मा एंड अदमिया. Alright, all of you. Let's look at over here. So when we are talking about pairs of words, we know we are talking about words that are put together in a pair, एक
पेयर की शक्ल में, जिसमें एक से ज्यादा चीजें होती हैं, दो चीजों का एक पेयर बनता है, और words. So they are the words, they are sets of words that may look or sound similar, जो दिखने में और साउंड में फोनेटिकली एक जैसे होंगे, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मतलब डिफरेंट होंगे. आप लिबर्टी नहीं ले सकते, यू कांट टेक द रिस्क ऑफ यूजिंग वन in the place of the other because it will be totally wrong. All right. Some common pairs of words include accept, which is a verb. Accept करना, कबूल करना. I accept your invitation. मैं आपका जो invitation है वो कबूल करता हूं. यानी this is an action, accepting something, or this is actually an action. Though it's not requiring your physical effort, but still it's an action. ठीक है? So this is a verb, to accept something. What is the pronunciation? Accept. देखें. How are we going to divide accept into syllables? ACC. हमें क्योंकि वाल को अलहदा करने के लिए, हमें सिलेबल को अलहदा करने के लिए वाल और कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है. कम अज कम हमें वाल लाजमी चाहिए अगर हमने सिलेबल की डिवीजन करनी है. तो यहां पे देखें, ACC, A is the vowel, CC is both consonants. This makes up one syllable. And EPT, we also have E as a vowel or PT consonants. Two syllables. So accept. तो इस तरह हमने डिवाइड किया. प्रोनाउंसिएशन की में आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, like apostrophe, this is actually dividing your syllables. So 1, 2, 2 syllables. अब ये जो सिंबल है, ये जो आप इन्वर्टेड ई देख रहे हैं, बिल्कुल लुक्स लाइक ई, राइट? ओके. ये हमें आवाज किस चीज की देता है? यहां पे हमने ए की आवाज किस तरह निकालनी है? एक्सेप्ट नहीं कहना हमने. जैसे हम अप्लाई कहते हैं, अप्लाई में हमारी ए की साउंड कैसी है? अप्लाई. अ साउंड है. क्या हम एक्सेप्ट कहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम एक्सेप्ट कहते हैं. यानी हम थोड़ा सा उसको, अब मुंह की मूवमेंट देखिएगा. एप्पल, सॉरी, व्हाट डिड वी से फर्स्ट? एक्सेप्ट और यस, एक्सेप्ट. तो आपकी मुंह की मूवमेंट जो है वो बाउंड हो जाती है. तो ये जो प्रोनाउंसिएशन की होती है, इसमें आपको सिलेबल की डिवीजन भी पता चल जाती है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि लफ्ज को किस तरह आपने अदा करना है, किस तरह आर्टिकुलेट करना है. मीनिंग क्या है? टू रिसीव विलिंगली, कि जानबूझकर, इंटेंशनली कोई चीज को कबूल करना, एक्सेप्ट कर लेना. ओके. हियर accept. Now Muhammad, say these two words together. पहले आप ये वर्ड बोलें और उसके फौरन बाद आप ये वर्ड बोलें. शाबाश. एक जैसा लग रहा है? साउंड में एक जैसा लग रहा है आपको? एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, होमोफोन्स, एक जैसी आवाज है. लेकिन क्या स्पेलिंग्स एक जैसे हैं? स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. अमन, यूजेज एक जैसा है? यूजेज भी डिफरेंट होगा. तो यहां पे जो एक्सेप्ट है, दिस इज एक्चुअली प्रेपोजिशन और कंजंक्शन. ऑलराइट. एक्सेप्ट, यहां पे आप देखें, देयर इज नो इन्वर्टेड ई, रादर देयर इज आई विदाउट अ डॉट. तो इसका मतलब है, क्या आपको लगता है इन दोनों को देखकर के इनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होगी? सिंबल्स डिफरेंट है ना. ऊपर का सिंबल देखें और नीचे का सिंबल देखें, डिफरेंट है. तो फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट एंड दिस इज एक्सेप्ट. थोड़ी सी आवाज को चेंज करेंगे. अच्छा, हमने क्यों इन वर्ड्स को पेयर अप किया साथ में? क्योंकि थोड़ा सा अल्फाज, थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम धोखा ना खा जाएं. हम दीज वर्ड्स बिट्रे अस. हमने बिट्रे नहीं होना, हमें धोखा नहीं खाना इनसे. हमने इनको एक साथ रखा ताकि हम इनके यूसेज को क्लियर कर सके. अमन, क्या है मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट? एक्सक्लूडिंग, विद द एक्सक्लूजन ऑफ, निकाल देना.
I can eat everything except that. मैं सब कुछ खा सकता हूं सिवाय इसके, यानी इस चीज को निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें. एक होता है इंक्लूड करना, ठीक है. अली हैज लेफ्ट. ओके. एक होता है इंक्लूड करना, दाखिल करना, एक होता है बाहर निकाल देना, एक्सक्लूडिंग. इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग. तो आप देखें एक्सक्लूड और एक्सेप्ट दोनों एक जैसे पेयर ऑफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. हमें आइडिया हो जाता है कि ये निकालने की बात कर रहा है. एक्सटर्मिनेट कर देना, एक्सपेल कर देना, वो भी ई एक्स से स्टार्ट होता है. एक्सेप्ट सिवाय उसके, यानी जब हम ई एक्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे वर्ड्स का, हमें फौरन आइडिया हो जाएगा दिस इज समथिंग दैट इज लीविंग समथिंग आउट. एक्सटर्मिनेट, एलिमिनेट, वो भी ई से स्टार्ट होता है. तो excluding with the exclusion of. Okay, another pair of word is affect and effect. Affect means, affect is actually, if you see the category of parts of speech, it is a verb. Affect karna. Effect is actually a noun. How does it differ? Affect and effect. You think just, is it okay? It's just one letter is different. बाकी सारे पांच तो same है ना? तो क्या फर्क पड़ता है? Does it make a difference? Of course, it makes a lot of difference in the English language. We can't take any chance or any risk. If you see affect, affect is a verb pronounced as affect, having two syllables. It means to produce a change or influence something. चीज में तब्दीली लाना, किसी चीज पे असर होना. अब जब असर होता है तो एक्शन होता है, बिल्कुल. Effect is a noun which means a change that occurred as a result. जो नतीजा होता है, जैसे cause and effect. उसमें cause and effect में effect कौन सा वाला है? वो ये वाला effect है, this last one. cause यानी reason और उसका नतीजा, उसका effect. तो वो effect है E वाला. और यहां पे effect ऊपर वाला है verb. To produce a change or influence something. आगे जाकर स्लाइड्स में इनके डिफरेंसेस को देखते हैं with examples. But here, affect is verb to produce a change or influence something. For example, drinking soft drinks will affect your health. बुरा असर छोड़ेगी, ठीक है, असर अंदाज होगी. Effect, ठीक है, अगर ये करोगे उसका नतीजा ये होगा. Slight difference, nuance है, but makes a lot of difference actually. Looks like there is no difference, but it makes a lot of difference. Another word is practice. You must have read this word and used this and heard this. एक है practice with C, which is used as a noun, और एक है practice with S, which is used as a verb. अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि what is the difference between, एक जुमला practice से बनाए और एक जुमला बनाए, एक सेंटेंस बनाए practice with S से, दोनों डिफरेंट होंगे. मतलब दोनों का एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एक डिफरेंट कॉनोटेशन होगी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग? लेट्स टेक अ प्रैक्टिस. इज इट रीडेबल? देखें, प्रैक्टिस विद सी क्या मतलब है? एक्चुअल एप्लीकेशन, बिलीफ, मेथड्स और यूज ऑफ एन आइडिया. टू प्रैक्टिस. ऑलराइट, सो which is a noun, a habitual or customary ritual, an exercise that is done repetitively. एक काम, एक मश्क जो बार बार की जाती है, that is called practice. But what do we mean by practice as a verb? अगर मैं आपको कहता हूं to perform an activity regularly in order to become proficient in it or improve a skill. To do something regularly or habitually, that is practice. So practice it. यहां पे मैं practice कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? वर्ब वाला. और यहां पे अगर मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द प्रैक्टिस आई एम यूजिंग इट विद सी. तो अगर आपने कोट करना है अपने किसी ऐसे में या स्टोरी में, when you're saying practice makes a man perfect, you're talking about this practice. And when you're saying practice it daily, you're meaning of this practice. क्या आपको फर्क नजर आया? बिल्कुल, exactly. Okay, we have some more pair of words. Abject
means miserable, बहुत ही पसमानदा, बुरी हालत में. He is living in abject poverty, बहुत ही नाजुक सूरत हाल जो होती है, ठीक है, miserable. So वो एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में, बहुत ही मिजरेबल गुर्बत में, ऐसे जैसे पसमानदगी वाली उसमें वो जी रहा है. लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? दिस इज मीनिंग एम. ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ही हैज नो ऑब्जेक्ट इन लाइफ. ऑब्जेक्ट इन लाइफ, उसका जिंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिससे लफ्ज ऑब्जेक्टिव निकला है, ऑब्जेक्ट नहीं है. अच्छा, ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एम नहीं है, ये है चीज. तो देखा, दो दो आ गए. ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग भी सेम है. इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि मीनिंग किस तरह डिफरेंट है. ही हैज नो ऑब्जेक्ट इन लाइफ. ओके, एबल और केपेबल. What do you see the similarity in able and capable? I know you are thinking about this, है ना, कि ये स्पेलिंग्स और ये स्पेलिंग्स एक जैसे हैं, कि capable में able के स्पेलिंग्स completely आ रहे हैं. So it means there's some similarity, कुछ तो एक जैसा होगा, similar होगा. Able means one who has the quality of doing something well. किसी के पास कुछ अच्छा करने की जो क्वालिटी है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एबल टीचर. वो एक काबिल टीचर है, काबिल उस्ताद है, यानी वो इस काम को करना जानता है. एंड वी नो टीचिंग इज समथिंग दैट इज वेरी सच अ पॉजिटिव थिंग. तो उसको करने की सलाहियत को भी हम पॉजिटिव ही कहेंगे. केपेबल मीन्स पोजेसिंग सफिशिएंट गुड और बैड क्वालिटीज. अब केपेबल होना, इसका मतलब है कि वो केपेबल हो सकता है अच्छाई का भी और बुराई का भी. तो क्या फर्क है ऊपर वाले में? द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट बीइंग एबल इन अ पॉजिटिव वे. ही इज एन एबल टीचर. ठीक है, यहां पे मैन इज केपेबल ऑफ डूइंग बोथ गुड एंड इविल. इज दैट राइट? क्या ये सच है? इज इट अ फैक्ट कि इंसान कैपेबिलिटी रखता है, ये सलाहियत रखता है कि वो अच्छा भी कर सके और बुरा भी कर सके, उसके पास फ्री विल है, उसके पास चॉइस है. तो आपने देखा फर्क क्या है? अगर मैं कहूं मैन इज एबल ऑफ डूइंग बोथ गुड एंड इविल, नो, मैन इज केपेबल ऑफ डूइंग बोथ एंड गुड एंड इविल. अगर मैं कहूं ही इज अ केपेबल टीचर, नो, आई वुड से ही इज एन एबल टीचर. एंड व्हाई आर वी यूजिंग एन ओवर हियर? बिकॉज दिस इज अ val. Okay. Ability and capacity. Now, they go together. How? The quality of doing something well is ability. जैसे हमने यहां पे देखा, able is also kind of meaning the same thing as ability. He has no ability of doing this kind of work. He has no ability of doing this kind of work. We are talking about good work. We are talking about productive work. कैपेसिटी में क्या फर्क होगा? द पोटेंशियलिटी ऑफ होल्डिंग और प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट. कि इतनी जगह, इतनी वसत हो कि एक चीज उसके अंदर आ जाए. ही हैज ग्रेट कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क. उसके अंदर इतनी वसत है, इतनी पोटेंशियल है, इतनी सलाहियत है कि वो हार्ड वर्क कर सके. एंड वी नो हार्ड वर्क हर कोई नहीं करता. हर किसी में हार्ड वर्क करने की भी वो प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक उसे ज्यादा प्रैक्टिस ना किया जाए, जब तक ज्यादा उसके ऊपर फोकस ना किया जाए. So ability and capacity. Different spellings, different pronunciation, but almost meaning the same. Almost मैं कह रहा हूं, completely same नहीं है, almost. लेकिन कुछ nuance है, कुछ पहलू इसका आपस में दोनों का क्या रिलेशन है कि एक कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम है, पहलू डिफरेंट है. Okay, let's talk about these. The Renaissance. Any question? क्या अब तक आपको? No, sir, all clear. Okay. Things are going well and smooth. All right, nice to know. Same sound but different meaning.
What do we mean by this? Accept and accept. Accept means कबूल करना. He did not accept my proposal. उसने मेरा proposal कबूल नहीं किया. Accept means all except Ali were present. सब थे सिवाय अली के. And now Ali आ चुके हैं. माशाल्लाह. Okay. Advice. यहां पे एडवाइस का क्या मतलब है? विद सी. ये ऐसे ही है जैसे वो आपने देखा था ना, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद सी एंड एस. यहां पे एडवाइस विद सी मींस नसीहत. शी टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माय एडवाइस. उसने मेरी एडवाइस पर, नसीहत पर कान नहीं धरा. उसकी कान पे जूं भी नहीं रहेंगी. लेकिन यहां पे एडवाइस क्या है? नसीहत करना. क्या ये वर्ब होगा? बिल्कुल, ये वर्ब है, ये नाउन है. This is noun. This is verb. It means I advised her to do her study. मैंने उसे नसीहत की. मैंने एक काम किया, एक verb किया मोहम्मद. ठीक है? मैंने काम किया. पहला जो वर्ड था एडवाइस, वो नाउन था. नसीहत. जैसे हर चीज के नाम होते हैं ना, कोट है, पेन है, पॉइंटर है, इसी तरह नसीहत है. और नसीहत क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन नाउन तो है. लेकिन यहां पे एडवाइस जो एस वाला है वो वर्ब की तरह यूज होगा. इसी तरह अफेक्ट और इफेक्ट में फर्क देखें. अफेक्ट मींस असर करना. इफेक्ट मींस असर. अफेक्ट मींस द मर्डरर अफेक्टेड मैडनेस. असर किया. इफेक्ट, हाई फीवर हैड नो इफेक्ट ऑन हिज ब्रेन. ज्यादा बुखार, तेज बुखार का उसके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ. कोई वो जो हम नतीजा कहते हैं जिस. ठीक है? तो आपने फर्क देखा, एक है असर करना, एक है असर. सो व्हाई डिड वी पेयर अप दीज वर्ड्स टुगेदर? एंड यू नो द रीजंस व्हाई. Now there are some more words: accept and accept, advice and advise, affect and affect, artist and artisan. Artist means he is an artist of paintings. एक artist है. Artisan means a carpenter is an artisan. फनकार और कारीगर में फर्क है. एक फनकार है, लिटरेरी फॉर्म है, एक आर्ट फॉर्म है, और एक हाथ का काम है, कारीगरी है. डिफरेंस है. एक्सेंट, एसेंट एंड एसेंट. एसेंट मींस चढ़ाई. एसेंट टू मरी इज वेरी हार्ड. मरी पर चढ़ना, चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है. ये कौन सा वर्ड है? एसेंट. और यहां पे एसेंट मींस मर्जी. आई गेव माई एसेंट टू द प्रपोजल. स्पेलिंग्स डिफरेंट है, लेकिन साउंड एक जैसा है, लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट है. ठीक है? एंजल, और ये दूसरा वर्ड क्या है नबीहा? एंगल. What do you mean by angel? फरिश्ता. He saw an angel in the dream. अगर मैं लिख दूं गलती से, ओवरलुक करके, He saw an angle in the dream, और आप उसको एंजल समझते रहें और टीचर उसे काट दे, मतलब तुमने ख्वाब में एंगल देखा, 90 का एंगल देखा, 60 का देखा, 20 का एंगल देखा. That doesn't make any sense. हो सकता है कि मोहम्मद जैसे बच्चे ने एंगल देखा हो. ठीक है? हो सकता है. But that's not, doesn't make sense. Sorry. Angel and angle. Angel, angle. क्या ये प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी? Angel और angle? Angel and angle. ठीक है? प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको, बल्कि अच्छा खासा आपको डिफरेंस यहां पे मिलेगा. Now, let's put everything to the test. Alright. Stay with me, the Renaissance and Ali, one by one. Raise your hand if you want to answer the question. Number one is, okay, the instructions are to fill in the blanks with the correct word from the pair provided. So you have pairs over here in the bracket, in parenthesis. You have to choose the right one. The teacher will blank late homework, but she will deduct points. Expect तो है ही नहीं. कौन सा? First one? Accept. Is that right? Yes. Yes, sir. The weather can. जी, कौन सा? सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सोचें.
सेकंड वाला तो कॉज एंड इफेक्ट का नहीं है क्या? क्या ये ठीक है या ये ठीक है? जल्दी से सोचें. First one, who's saying this? जी, mention your name. Mubiha. Yes. Do you think the first one is the correct one? जी. बिल्कुल. First one, the weather can affect our mood. Number 3, I will accept or accept the invitation to the party. First one, obviously. The special effect or effect of the medicine was immediate. Special effect या special effect? Effect. Effect. जैसे साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स में क्या होता है? कौन सा इफेक्ट होता है? ई वाला या ए वाला? ओके. प्लीज एक्सेप्ट जॉन. प्लीज एक्सेप्ट जॉन फ्रॉम द गेस्ट लिस्ट. क्या आएगा? सेकंड. यानी जॉन को गेस्ट लिस्ट से निकाल दो, आप ये कह रहे हैं. आपकी जॉन के साथ कोई दुश्मनी है? ओके. Accept John from the guest list. The loud music will affect or effect your sleep. Effect. G. Number 6. The loud music will कौन सा effect होगा? Effect या effect? Second one. Second one? Yes. Any other? Cause क्या है? देखें, accept और accept की definition. He did not. अच्छा, यहां पे affect and effect. Yes. Look at the examples. Affect means असर करना. The murder affected madness. उसने कत्ल किया, वो उसके जहन पर असर अंदाज हुआ, वो पागल हो गया. He turned mad. He turned into madness. और effect with E means high fever had no effect on his brain. यानी असर, यानी हाई फीवर कॉज था बट उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ. तो अब सोचें, अब बताएं. जी. Sir, second one. Yes. This one? Okay. I will accept or accept your apology. Of course, I will accept your apology. The special effect or effect of the storm was widespread. No, you're Sir, confusing it. Effect with E or A? with E. With E, yes. अच्छा, यहां पे भी the loud music will affect your sleep. वो आपके ऊपर असर करेगा अंदरूनी तौर पर. It will disturb your sleep. Okay, now one last thing is these little MCQs in the classroom activity. Number 1 is Max held his. अब यहां पे who is going to pronounce these two words correctly? Yes, breathe and breath. What is the right option? Max held his breathe for 2 minutes or breath for 2 minutes? Ali, what about you? Breathe. पहले तो क्लैरिफाई करें ब्रीथ और ब्रेथ में फर्क क्या है. सोचें, मैक्स हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स या मैक्स हेल्ड हिज ब्रीथ फॉर 2 मिनट. ब्रीथ कहते हैं सांस लेने को, ब्रेथ है सांस. तो यहां पे सांस रोका उसने, सांस लेने को नहीं रोका बल्कि सांस को रोका. यहां पे सांस और ये सांस लेना. अच्छा जी. What about this one? Did you blank the news about Mary? Listen or hear? जी बताएं. How many students are saying listen? जी. What about Asma? Asma क्या हुआ? Are you finding it difficult?
No, sir. Okay, think about it. Here. Yes, did you hear the news about Mary? क्यों? यहां पे because listen के साथ तो हमें to भी चाहिए ना. Listen to me. I've listened to blank. I've listened to blah blah. Here, yes, I heard the news. I heard a rumor. I heard a news. तो यहां पे here is the right option. How much money can you lend or borrow? शाबाश. सोचें. Ali, what about you? Please zoom in. जी. इतना सन्नाटा क्यों है? शाबाश. Land. Yes, how much money can you lend me? देखें, बोरो करना जब आपसे कोई चीज बोरो करता है. He borrowed from me. Lend जब आप किसी से मांगते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. फर्क है ना? आपका देना और आपका लेना फर्क है बिल्कुल. तो यहां पे हाउ मच मनी कैन यू लेंड मी? लेंड इज द राइट ऑप्शन. सो देखें, यहां पे स्पेलिंग्स भी और हैं, इनकी वॉइस भी और है. कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो लेने और देने के दरमियान लेन देन के मामलात के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. तो अगर आप बोरो की जगह लेंड यूज करेंगे, दैट विल बी टोटली नॉट मेकिंग सेंस. ऑलराइट. Okay, this has already been done. Okay, a worksheet is shared with you जहां पे आपने exactly the same choose the word with the correct spelling and the correct context. Here are some links for you. इस लिंक पे आपको MCQs और एक्टिविटीज मिलेंगी. इस लिंक पे आपको और इंफॉर्मेशन अबाउट होमोफोन्स मिल सकते हैं. ठीक है. तो होमोफोन्स में और पेयर ऑफ वर्ड्स में स्लाइट डिफरेंस है. पेयर ऑफ वर्ड्स हम एक साथ पेयर करते हैं ताकि उसके लिए कंफ्यूजन ना हो. कोई वर्ब हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकती है. और होमोफोन्स वो वर्ड्स जो एक जैसे सुनने में लगते हैं. स्पेलिंग्स एक जैसे हो सकते हैं, दोनों के स्पेलिंग एक जैसे नहीं भी हो सकते. दोनों के स्पेलिंग्स भी एक जैसे हो सकते हैं, साउंड भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा. So this is all about today's lecture. The resources, the worksheet is already shared with you. It will be uploaded in the description of the video as soon as this video is going to be uploaded on YouTube. Thank you so much, dear learners. Take care of yourselves. Allah Hafiz.